Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV's Morning Brief. Reacting to the LH Ayodhya Ram Mandir donation embezzlement case, CPIM Rajya Sabha MP John Brittas alleged that places of deep religious faith had been misused for large-scale looting. He claimed that devotees had been exploited and demanded a comprehensive investigation into the matter. Profound sites of religion, faith has been used for looting. Thousands of crores have been looted from Ayodhya, and faithful devotees have been exploited. According to Mallikarjun Kharge, the loot is to the extent of 5,000 crores. Even Charan Padak of Ram has been looted. The silver coins, silver bricks have disappeared. I feel that it cannot be hushed up. The SIT probe itself is an eyewash. There should be a judicial probe or a joint parliamentary committee should look into it. Because the Prime Minister of this country has gone and done the Pran Pradishta inauguration sab kuch hai. So this is a fit case where the country needs to be taken into confidence. Never in the history of India such a looting has happened. And even the BJP leaders themselves have come out and given details about this orchestrated loot. I feel that there should be a comprehensive inquiry, a judicial inquiry or a JPC inquiry into the whole gamut of issues. Fresh from clinching gold at the Asian Athletics Championship in China, veteran Indian sprinter Shrabani Nanda has credited her remarkable longevity in athletics to a unrelenting hunger for success, strict discipline and a firm commitment to competing clean. With a career spanning more than 2 decades, Nanda said there is no secret behind her sustained performances at the highest level. She also hopes to keep improving irrespective of past achievements. Yeah, Shravani, first of all, congratulations for the gold medal in China. Thank you so much. So, one question which I wanted to ask for a long time is you seem to be continuing more than 10 years in your career. So what is the secret and how does you keep on going? There is no secret. It is always like I'm hungry. Whenever I get one medal, I wanted to do better in the next one, and I wanted to keep continuing doing better and better. So definitely there is a lot of sacrifices, lot of challenges, as I have been competing since last 24 years. So I have a lot of experience as well, so I can manage myself, and I definitely say that it is very important to stay clean, and that gives a lot of confidence, and you can focus on that for your competition. I prepare myself every day. I prepare mentally, physically. Every day I prepare myself. There is a lot of ups and downs, a lot of mentally ups and downs, emotionally ups and downs, but I try to hold myself. I keep my surrounding, supportive surroundings, so that I will not feel low and all that. So it is everything get together, and it gives me, it allows me to achieve such achievements. Do you mean to say that you have not indulged any kind of doping or drug related thing when you say that I keep myself clean? Yeah, it is that exactly I meant that. So what is your message to the youngsters, and you have been more than 15 years in international career, and unfortunately India is having lots of this doping problem? I mean, we have to change the mindset that we can't do without drugs. We have to change into we can do without drugs, and we have to make sure that we keep our body healthy, and we should not play with our body having drugs and having bad stuff. And naturally the prohibited drugs would even make your body deteriorate in a long Yes. That is right. And I think I've spoken to you some long time back when you were training in Jamaica, I remember. So it has been a long career, ups and downs. So how do you sum up, like have you achieved more of your objectives and aims you had set out?
I'm not sure it is not easy. It is an everyday thing. I told you that I am always hungry. I want to do better and better day by day, every day. I don't get satisfied so easily, and I have a very good surrounding in my family, friends. They always support me, and they have been supporting a long while, and I thank to them for that. Also, when I went to Jamaica, I learned a lot about sprinting. I learned a lot about how to manage sports, how to manage competition and all that. So it helped me a lot, and I have seen so many international athletes who has been running so well in their late years. So that inspired me as well. So I definitely say this is the thing to make me allow me to run. And the state government has also supported a lot. Besides the state government, were there any other financial support system? I am actually an employee of Odisha Hydropower Corporation, so they support me financially. Also, we get some incentive. It's not enough, but it is somewhat we able to manage it. So that is how we just manage. Okay. And in future, what are you aiming for? Naturally, the Asian Games is coming up, and maybe even LA Games also. Like any target set for the coming years? Well, I stay in the present, so for now I have to think about interstate. After that, we will. For this season, main goal is Asian Games, and we will stick to that. And you seem to be very much passionate about athletics. Do you have anything in mind after, like, say, 10 years or something like that? It depends on the circumstances and the situation when it comes. So I can't say much about it. When time comes, it will reveal. One last question, Shravani. In your long career, do you have any moment like it was too difficult to continue and I just want to give up and go away, something like that? There was so many times I thought of it. In training, it is so hard. Sometimes we vomit in the training, and we have to still get up and do our next repetition. We get so tired. We get so frustrated. So when time doesn't come, like the day-to-day timing, the day-to-day goal we don't achieve that time. We feel really frustrated. Those days I feel really bad and feel really low. But we have to hold ourselves up and think for the upcoming days and make sure we do in a right way and stick to the goal. You are talking this about generally, not a particular period, 5 years back, 2 years back, 3 years back? No, I am talking about generally, yes. Reacting to allegations of mass land acquisition involving the family of Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav, Madhya Pradesh Congress President Jitu Patwari said the Congress party had raised questions a day earlier but had not received any response from the Chief Minister. दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर एक मीडिया हाउस ने क्लियर कट एविडेंस के साथ सारी चीजें सार्वजनिक की है। कांग्रेस पार्टी ने उस पर कल सवाल किए थे, 30 घंटे बीत गए, आज तक जवाब नहीं है। अभी मोहन यादव का 2018 का जो उन्होंने अपना एफिडेविट दिया था वो सार्वजनिक हो रहा है, पर 2013 का नहीं हो रहा है। ये का यही चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ, वो का वही चुनाव और भी राज्यों में हुआ, वहाँ 2013 के भी सारे प्रत्याशियों के एविडेंस सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग में डेटा पे आप चेक कर सकते हैं, नहीं आ रहा है। मैसेज क्या है? दाल में कुछ काला है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर इतना बड़ा स्कीम हुआ तो देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, मौन क्यों है? अयोध्या में चोरी हुई, महाकाल में लूट हुई, लगातार इसके तार दिल्ली तक जुड़ते हैं, तो क्या है मोदी का नया करप्शन का मॉडल है? सवाल यह है कि अगर सब गलत है तो फिर उस मीडिया हाउस पे एफआईआर क्यों नहीं हुई? अगर सब गलत नहीं है, आपका पक्ष रखना है, तो 30 घंटे से मौन क्यों है बीजेपी, मोहन यादव, देश की बीजेपी, प्रदेश की बीजेपी? तो हम अपनी बात लगातार कह रहे हैं और पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं। सही समय पे हम और बातें करेंगे। मुख्यमंत्री ने पद से इस्तीफा भी देना चाहिए और जवाब भी देना चाहिए। ये बड़ी बात, जांच किस तरीके की होनी चाहिए? मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराओ और क्लियरिटी लाओ कि देश को गुमराह मत करो, जो सही है वो वस्तु स्थिति सामने आएगी। आपने कहा मेरे मुख्यमंत्री, हाँ, तो आप किस तरीके की इंटरनल रिफ्ट भी लगती है क्या आपको उसमें? तभी क्यों? प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारा नहीं होता है, देश के प्रधानमंत्री हमारे नहीं होते हैं।
दल का चुनाव तक है, देश का चुनाव के बाद जब तक सत्ता में है, आखिर नेशन फर्स्ट है भाई, देश पहला है। जो जीता वो सिकंदर, अगर मिल गई सत्ता फिर हम सबका उद्देश्य क्या है, प्रदेश समृद्ध करें। हमारा मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, जमीन खरीदी, चोरी कर रहा है, दोनों बात एक साथ है। तो हमारा मुख्यमंत्री चोरी करेगा तब भी हमारा रहेगा और न्याय करेगा तब भी हमारा रहेगा। Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav also Congress leader Pawan Khera demanded a time-bound inquiry under the supervision of a sitting Supreme Court judge, stating that a transparent investigation was necessary to bring out the truth, commenting on the alleged Ayodhya Ram Mandir donation embezzlement case. किस तरीके की जांच आप चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में? एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में टाइम बाउंड ये एक इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि सबके सामने सच तो खैर सबको पता ही है, लेकिन और जो भी सच है सब कुछ सामने आए, कौन कौन इसमें शामिल है, किसकी वजह से ये षड्यंत्र हुआ। मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक जो बयान आ रहा है या उनके करीबी लोगों की तरफ से आ रहा है, उनकी पार्टी की तरफ से आ रहा है, उस पर आपने हमने सुना नहीं। वो पार्टी तो कह रही जाति की कोई बात नहीं साहब, आप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, इनको जाति से नहीं देखा जाता, इनको अपने कर्मों से देखा जाता है, और कर्म अगर आपके ऐसे हैं तो सवाल उठेंगे। अखिलेश यादव जो आप इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं समाजवादी पार्टी, वो ये कह रही है कि षड्यंत्र हो रहा है मुख्यमंत्री के खिलाफ। वो हो सकता है वो सही कह रहे हो, लेकिन षड्यंत्र तभी हो रहा है ना जब कुछ है। बिना आग के धुआं तो नहीं निकलता, ये तो धुआं इतना भारी है तो आग भी बहुत बड़ी है। आपने एक और बात कही, आपने ये कहा कि चंदा वहां भी चोरी हो रहा है, अयोध्या में राम मंदिर की बात करी। एसआईटी ने शुरुआती जांच में जो चीजें कही हैं उस पर कोई अब एसआईटी कैसे गठित हुई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट किसको दी, ये सब छोड़िए। बड़ी मछलियां और मगरमच्छ वो बच के निकल जाएंगे। आज आप ये लिख कर ले लीजिए। लोगों की ये एक मंदिर है जो आरएसएस की देखरेख में चल रहा है, एक मंदिर पूरे देश में। ये हालत देख लीजिए उस मंदिर की। ये है आरएसएस मॉडल, ये है कारण क्यों आरएसएस अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाता है। ये कारण अगर आपको ढूंढना है तो अयोध्या चले जाइए, मिल जाएगा। आरएसएस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आप कह रहे हैं? जाहिर है होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। ना केवल रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उनकी अकाउंट बुक सार्वजनिक होनी चाहिए। लेखा जोखा जैसे कि हर ट्रस्ट हर कंपनी का होता है, उनका भी होना चाहिए। Bhajpa leader Pradeep Bhandari alleged that the Siddhartha Vihar Trust received a 5-acre land allotment from the Karnataka Industrial Area Development Board (KIAD) in 2024 during the Congress government's tenure in Karnataka. He claimed that the land, allegedly meant for aerospace and defence research and development activities, was instead allotted to a private trust linked to Congress President Mallikarjun Kharge. पहला केस लैंड लूट का जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट को KIAD कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने वर्ष 2024 में, तो वर्ष 2024 में कर्नाटका की सरकार, कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार मौजूद थी। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष थे और अभी भी हैं, और प्रियांक खड़गे मंत्री थे। इस ट्रस्ट को 5 एकड़ भूमि KIAD ने दी थी, कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने 2024 में दी थी। और जिस पर्पस के लिए दी गई थी वो कहा गया था कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे एरोस्पेस और डिफेंस में। दोस्तों, अब इस 5 एकड़ भूमि का मार्केट रेट 100 करोड़ का है। अब ये सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट ने इसके पहले कोई भी काम ना एरोस्पेस में किया है, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एरोस्पेस या डिफेंस में किया है। तो सवाल यह उठता है कि कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसे ट्रस्ट जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मेंबर है, उसको 5 एकड़ भूमि जो इंडस्ट्रियल लैंड है, जिसको कोई ना कोई इंडस्ट्रियल या एरोस्पेस के ट्रस्ट को देना चाहिए था, उन्होंने एक प्राइवेट ट्रस्ट को दिया जो कांग्रेस अध्यक्ष का ट्रस्ट है। और इस ट्रस्ट ने कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं की। तो सवाल यह उठता है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना पावर और इंफ्लुएंस यूज करके
क्या प्रियांक खरगे ने अपना पावर और इन्फ्लुएंस यूज करके जो इंडस्ट्रियल 5 एकड़ की भूमि कर्नाटका में थी, जिसका मार्केट रेट 100 करोड़ था, उसको क्या प्राइवेट लैंड ग्रैब किया? याद करिए, राहुल गांधी और पूरा गांधी वाड्रा परिवार के रॉबर्ट वाड्रा जो इनके जीजाजी है, इन पर भी तमाम एरियाज के अंदर इसी तरीके के लैंड लूट के आरोप है और केसेस चल रहे हैं। सो जो मॉडस ऑपरेंडी गांधी वाड्रा परिवार ने लैंड लूट करने के लिए किया, ठीक वही मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट के माध्यम से 5 एकड़ भूमि, जो एक प्राइम इंडस्ट्रियल लैंड है जिसका 100 करोड़ का नेटवर्क का वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उसको अपने प्राइवेट ट्रस्ट के हाथों में करा। अब ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का 13(1)(a) 13(1)(b क्या कहता है? कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर इंटेंशनली अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए खुद को बेनिफिट प्रोवाइड करता है, दैट माइट बी मॉनेटरी बेनिफिट, दैट माइट बी एक्यूमुलेशन ऑफ एसेट्स, ये एक कॉग्निजेबल क्राइम है। दिस इज अ क्राइम अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सेक्शन 13(1)(a), सेक्शन 13(1)(b। तो मैं सवाल यह पूछना चाहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, खड़गे जी आप तो एक राजनेता है, आपका ये प्राइवेट लिमिटेड ट्रस्ट जो है, इसने ऐसा कौन सा पास्ट में काम किया जो एरोस्पेस और रिसर्च की भूमि को आपके प्राइवेट ट्रस्ट को दे दी गई? अब ये इकलौता मामला नहीं है, मैं एक और आपके सामने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का लैंड ग्रैब का मामला रखना चाहता हूं। ये वापस से ट्रस्ट जो है, इस ट्रस्ट का नाम सेम ट्रस्ट है, सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियांक खरगे दोनों मेंबर्स हैं। इस ट्रस्ट ने बेंगलोर के पास की जो भूमि मैंने आपको बताया 5 एकड़ की, इसके बाद में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में 19 एकर्स ऑफ लैंड, अगेन 2016 में जब कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ये 19 एकर्स ऑफ लैंड सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट को दिया जाता है और कहा जाता है कि ये पाली लैंग्वेज के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए होगा। तो ये अजीब को गरीब ट्रस्ट है जो बेंगलोर के अंदर कहता है कि वो एरोस्पेस और डिफेंस के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट करेगा और इंडस्ट्रियल भूमि को अपनी प्राइवेट भूमि बना लेता है, और गुलबर्गा में कहता है कि पाली लैंग्वेज का रिसर्च और डेवलपमेंट करेगा, और 19 एकर्स ऑफ लैंड कर्नाटका की कांग्रेस की सरकार खरगे जी के प्राइवेट ट्रस्ट को दे देती है। Reacting to the purported video allegedly showing desecration of Sikh Guru photographs by Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, Bhajpa National General Secretary Tarun Chugh alleged that the Chief Minister had earlier dismissed the video as AI generated when questioned asked by Sri Akal Takht Sahib. Accusing Bhagwant Mann of disrespecting Sikh sentiments and misusing power, Chugh claimed that Punjab Chief Minister had no moral right to continue in office. शुरू से ही भगवंत मान लगातार पाप पर पाप कर रहे हैं और पाप छुपाने के लिए महापाप कर रहे हैं। जब श्री अकाल तख्त साहब ने उनको बुलाया था और उनके सामने वो अभद्रता वाली, अश्लीलता वाली, अनैतिक कृत्य करने वाली, बेदबी करने वाली वीडियो रखी थी, तो उन्होंने उसको डिनायल करते हुए कहा था कि ये वीडियो गलत है, एआई से निर्मित है, टेम्पर्ड है, इसकी जांच होनी चाहिए। और उन्हीं की भगवंत मान की रिक्वेस्ट पर ही श्री अकाल तख्त साहब ने 2 इंडिपेंडेंट एजेंसियों से उसकी जांच कराई और जांच में यह स्पष्ट हो गया कि वीडियो ना तो टेम्पर्ड है ना एआई से निर्मित है। और उसी के आधार पर श्री अकाल तख्त साहब ने भगवंत मान को गुरु दोखी पंथ विरोधी करार दिया। पर भगवंत मान सत्ता के नशे में चूर, सत्ता की मदता में चूर श्री अकाल तख्त साहब को चैलेंज कर रहे, चुनौती दे रहे हैं और एक झूठी फर्जी रिपोर्ट लेकर आ गए जिसमें पैसे के बल पर वो रिपोर्ट बनवाई गई कि इस वीडियो में भगवंत मान है ही नहीं। अब उस फोरेंसिक लैब के
उसी डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से वीडियो के सामने आके कहा कि पैसे के बल पर पुलिस के कुछ अधिकारी उन्हें से दबाव के कारण उनसे ये रिपोर्ट बनवाई है। ये पाप पर पाप और पाप पर महापाप, अकाल तख्त को चुनौती देने का पाप लगातार भगवंत मान कर रहे हैं। मेरी सभी पंजाब के निवासियों से निवेदन है कि भगवंत मान को श्री अकाल तख्त साहब ने गुरु दो की पंथ विरोधी घोषित किया, उसके सामाजिक बहिष्कार की बात की है। ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई अधिकारी आज उनको मिलने को तैयार नहीं है। ऐसे समय में उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री के पद पर रहें। उन्हें पूरे विश्व के नानक नाम लेवा संगत का दिल दुखाया है, सिख मर्यादाओं को तार तार किया है, गुरुओं का अपमान किया है। उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो कुर्सी पर बैठे रहे। जी सर, आप Well, that's all for now. For more news, keep watching Hornbill TV.